ہماری نانا نانی کی وفات سے پہلے امی کی شادی ہو چکی تھی، مگر ماموں ابھی کنوارے تھے اور کالج میں پڑھ رہے تھے۔ ماموں کا آگے پیچھے ہمارے سوا کوئی نہیں تھا، تو ابو نے کہا کہ ہم سبحان کو اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، یہ اکیلا گھر میں کیسے رہے گا۔ تب ہی امی اپنے چھوٹے بھائی کو ہمارے گھر لے آئیں۔ ماموں ہمارے پاس رہنے لگے۔ ماموں نے اپنا مکان کرائے پر دے دیا اور کرائے کی رقم سے اپنی تعلیم کا خرچ پورا کرنے لگے۔ جب تعلیم مکمل ہو گئی تو ابو نے بھاگ دوڑ کر انہیں ایک سرکاری محکمے میں کلرک لگوا دیا۔ یوں ماموں ایک اچھے عہدے پر فائز ہو گئے۔ وقت گزرنے لگا۔ ملازمت ملنے کے 3 سال بعد ماموں کے پاس اتنی رقم جمع ہو گئی تھی کہ وہ شادی کا خرچ اٹھا سکتے تھے۔ امی نے رشتہ داروں میں سے ایک لڑکی بھائی کے لیے پسند کر لی جو خوبصورت تو تھی مگر امیر باپ کی بیٹی نہیں تھی۔ اس کے والد ایک دکان پر ملازم تھے اور یہ ان کی اکلوتی بیٹی تھی جس کا کوئی نہ بھائی تھا نہ ہی بہن۔ مختصر سی فیملی، سفید پوش مگر شریف لوگ تھے۔ والدہ نے دیر نہیں کی اور بھائی کا رشتہ کر دیا۔ یوں انیلا ہماری مومانی بن کر آ گئی۔ کچھ دن تک ماموں اور انیلا مومانی ہمارے ساتھ رہے۔ جب ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا تو والدہ نے بھائی کو تجویز دی کہ تم اپنے والد کا مکان جو کرائے پر دے رکھا ہے اسے خالی کروا لو اور اس میں اپنی فیملی کے ساتھ شفٹ ہو جاؤ۔ اس طرح تم بھی سکون سے رہو گے اور تمہیں جگہ کی تنگی بھی نہیں ہوگی۔ مومانی تو پہلے ہی سوچ رہی تھی کیونکہ ہم بہن بھائیوں کے شور شرابے سے وہ تنگ آ چکی تھی۔ ماموں مومانی اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہ اب ہفتے میں ایک دن ہمارے یہاں رہنے آتے اور پھر اپنے گھر کو لوٹ جاتے۔ ان سے ہم لوگوں کا پیار کا رشتہ قائم تھا۔ خاص طور پر امی جان کو اپنے بھائی سے بہت محبت تھی۔ والد صاحب بھی ماموں کو چاہتے تھے کیونکہ وہ نیک تھے۔ دکھ سکھ میں ابو بلاتے تو اپنا کام چھوڑ کر دوڑے چلے آتے۔ مومانی کے ہاں جب دوسرے بچے کی پیدائش ہوئی تو ان کا پہلا بچہ تقریباً 3 سال کا تھا۔ وہ 2-4 دن بخار میں رہا پھر فوت ہو گیا، جس کی وجہ سے انیلا مومانی بے حد رنجیدہ اور ڈسٹرب ہوئی۔ امی جان چند دن کے لیے انہیں اپنے گھر لے آئیں تاکہ ان کا غم ہلکا ہو سکے۔ مومانی کے تیسرا بچہ لڑکی ہوئی لیکن دکھ ان کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا۔ تیسرے کی پیدائش کے 6 ماہ بعد دوسرا والا وفات پا گیا۔ اللہ جانے کیا راز تھا کہ ان کے یہاں جو بھی اولاد ہوتی وہ زیادہ سے زیادہ 5 برس جی پاتی تھی۔ میرے ماموں اور مومانی بہت دل برداشتہ رہتے تھے۔ مومانی کہتی تھی کہ اس سے اچھا تھا اللہ مجھے بے اولاد ہی رکھتا، بار بار بچوں کے مرنے کا صدمہ اب مجھ سے نہیں سہا جاتا۔ اس بار جب وہ حاملہ ہوئی انہوں نے نہایت خشوع و خضوع سے دعا مانگی، اے اللہ بے شک بیٹی دے دینا مگر زندہ رہنے والی دینا، بے شک اس کے بدلے میری جان لے لینا مگر اس کی موت کا صدمہ نہ دکھانا۔ جب امی کو پتہ چلا کہ وہ اس قسم کی دعائیں کرتی ہیں تو انہوں نے سمجھایا انیلا ایسی دعا کبھی منہ سے نہ نکالا کرو، کیا خبر کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں زندہ رہنے والے بچے دے مگر تمہاری عمر بھی دراز ہو اور تم اپنے بچوں کی خود پرورش کر سکو۔ سوچو تو بغیر ماں کے بچے کیسے پلتے ہیں، پل بھی جائیں تو غیروں کے ہاتھوں میں ان کا کیا حشر ہوتا ہے۔ خدا کرے ہر بچہ جو اس دنیا میں آئے اپنے والدین کی چھاؤں میں اور ان کے زیر سایہ پرورش پائے۔ خیر اسی طرح مومانی کی 2 لڑکیاں ہو گئی مگر اس بد نصیب عورت کی وفات دوسری بیٹی کی پیدائش کے فوراً بعد ہو گئی۔ یوں یہ معصوم بچیاں نوعمری میں بے سہارا ہو گئیں۔ ماموں جان اپنی بیوی کی وفات سے بہت پریشان تھے جبکہ 2 چھوٹی بچیوں کو پالنے پوسنے کا بھی مسئلہ تھا جن میں سے ایک ابھی صرف 1 دن کی تھی۔ انہوں نے امی سے استدعا کی کہ آپ ہی میری بچیوں کو پالیں، مجھے اور کسی پر بھروسہ نہیں اور نہ ہی کوئی اور ایسا ہے جسے میں پرورش کے لیے سونپ سکوں۔ یہ بات تو روز روشن کی طرح عیاں تھی کہ ان بچیوں کو اب امی جان نے ہی پالنا اور سنبھالنا تھا۔ فی الحال ماموں جان نے دوسری شادی کے بارے میں بات کرنا بھی فضول سمجھا کیونکہ وہ انیلا سے بہت پیار کرتے تھے اور اس کی ناگہانی موت کے دکھ میں نیم جان ہو رہے تھے۔ پھر بچیاں اتنی کم سن تھی کہ سوتیلی ماں بھی نہیں پالتی۔ امی بچیوں کو گھر لے آئیں اور ان کی پرورش میں لگ گئی۔ ان کے اپنے بچے باشعور ہو چکے تھے اور ہم سب ہی اسکول جانے لگے تھے۔ میری امی نے مددگار کے طور پر ایک ادھیڑ عمر غریب بیوہ خاتون کو ملازمہ رکھ لیا جو بچوں کی پرورش میں ان کی مدد کرنے لگی۔ وقت گزرتا گیا مگر ماموں کا رجحان دوسری شادی کی طرف نہ ہوا۔ وہ بہت دل برداشتہ رہتے تھے کہ کہیں سوتیلی ماں ان کی معصوم کلیوں کو مسل نہ ڈالے اور یہ بچیاں ان سے جدا نہ ہو جائیں۔ میرے ماموں اپنے دل کے چمن کی ان معصوم تتلیوں کو دیکھ کر جیتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، ماہنور دعا جوان ہو گئی۔ مومانی کی وفات کو 16 سال بیت چکے تھے۔ ان کی دونوں بچیوں کو ماں بھی یاد نہیں تھی، چھوٹی والی نے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ میری امی کو ہی اپنی ماں سمجھتی اور پھپھو کی بجائے اماں کہہ کر بلاتی تھی۔ میری ماں نے بھی ان کی پرورش پیار سے کی اور محرومی کا احساس نہ ہونے دیا۔ تاہم سگی ماں اور دوسری عورت خواہ کتنی ہی محبت سے پالے کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے۔ ماموں کی سب سے بڑی بیٹی ماہنور کو کبھی کبھی بخار آ جاتا تو اماں گھریلو ٹوٹکے شروع کر دیتی یا پھر قریبی کلینک کے ڈاکٹر سے دوا لا کر کھلا دیتی تو بچی کا بخار اتر جاتا۔ جب وہ 10 سال کی تھی تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، کبھی کبھی بخار آتا اور پھر اتر جاتا مگر جب وہ 16 سال کی ہوئی تو ہلکا ہلکا بخار مستقل رہنے لگا۔ والدہ نے دھیان نہیں دیا کہ ایکس رے کراتی یا پھر کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی۔ بچی بھی بے حد صبر
घर वाली साबित हुई थी। वो अपनी तकलीफ का जिक्र किसी से नहीं करती थी। एक दिन मामू आए तो बोले, मैं कुछ दिनों से नोट कर रहा हूँ कि महानूर थकी थकी सी लगती है और रंग भी जद हो रहा है। आपा इसे क्या हो गया है? अम्मी ने जवाब दिया, भाई जब कभी बच्चों को बुखार हो जाता है तो फौरन डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, ठीक हो जाती हैं। मामूली बुखार, खांसी, नज़ला वगैरह मौसम की तब्दीली से हो जाता है। बच्चे यूं ही लूट फूट कर ठीक हो जाते हैं। तुम फिक्र मत करो, बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी, लेकिन तुम अब इनकी शादियों की फिक्र करो। बच्चियां कभी मुरझाएं तो शादी के बाद ठीक हो जाती हैं। मामू ने कहा कि आपा तो फिर तुम ही इनकी शादी के बारे में सोचो। मेरा मन करता है कि तुम महानूर को अपनी बहू बना लो। तुम्हारे हाथों की पली है, घर की बच्ची घर में रहेगी तो हम दोनों को सुख रहेगा। हम 2 बहनें थी और हमारे बाद 2 भाई थे जो अब तालीम मुकम्मल कर चुके थे और कारोबार में वालिद साहब के साथ शरीक हो गए थे। मेरी वालदा को मेरे भाइयों की शादी की फिक्र थी, बल्कि कई घरों में इनके लिए लड़कियां देखने भी गई थी, मगर अपने मतलब की बहू मिल नहीं पा रही थी। मामू ने इन्हें याद दिलाया कि जब अपने घर में लड़कियां हैं, मेरी 2 बच्चियां हैं और तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तो फिर घर घर झांकने की क्या जरूरत है। वालदा ने बेशक भाई और भतीजियों से प्यार किया, इन्हें माँ बनकर पाला, मगर जब अपने लड़कों की शादी का मसला आया तो एकदम कारोबारी हो गई। बेचारे मामू की कलील आमदनी थी और मामूली सरकारी मुलाजिम थे, जबकि वालिद का कारोबार सेट था। वो लाखों में खेल रहे थे। वालदा का मिजाज भी दौलत की रेल पेल ने बदल दिया था और अब वो अमीर घरानों से बहुएं लाना चाहती थी। इन्होंने भाई को 2 टोक जवाब दे दिया कि जल्दी ना करो, मैं इनके लिए बहुत अच्छे घर का रिश्ता देख रही हूँ। महानूर मेरे बेटे को अपना भाई समझती है और वो भी इसे बहन मानता है। ऐसे में दोनों एक दूसरे को किसी और रिश्ते से कबूल नहीं करेंगे। बाकी तुम्हारी छोटी बेटी के 1-2 बहुत अच्छे घरानों से रिश्ते आए हुए हैं। मेरा छोटा लड़का फिलहाल शादी नहीं करना चाहता। इसी दौरान अगर तुम्हारी लड़कियों का रिश्ता आ गया तो मैं कर दूंगी। मैं लड़कियों को बहुत देर तक घर बिठाए रखने के हक में नहीं हूँ। अपनी लड़कियों की शादी भी मैंने 16 साल की उम्र में करके इन्हें अपने घर का कर दिया था। बेचारे मामू मोहब्बत करने वाली बहन का टिक्का सा जवाब सुनकर खामोश हो गए। हालांकि इनकी दिली ख्वाहिश थी कि कम से कम इनकी बड़ी बेटी का रिश्ता मेरी जान अपने बेटे से कर दें, क्योंकि वो बड़े भाई को बहुत पसंद करते थे। मगर मेरी माँ ने दौलत के ज़ोर में भाई को इनकार कर दिया और तसल्ली दी कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी लड़कियों के रिश्ते भी मैं कराऊंगी कि तुम देखते ही रह जाओगे। बहन की बातों से भाई का दिल अंदर से टूट गया, मगर जुबान से कुछ नहीं कहा। पहले ही बहन का ये एहसान कम था कि इनकी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया था। वो बददिल होकर टूट गए थे। इधर अम्मी ने महानूर का रिश्ता अपने ससुराल में एक नॉर्मल से घर में तय कर दिया। लड़के का नाम शाहजेब था। यूं शादी की तारीख रख दी गई। मामू के दिल से मैल जाता रहा, क्योंकि अम्मी जान इनके सारे काम कर रही थी और जहेज भी अपनी तरफ से ठीक ठाक बना कर दिया था। महानूर को बहुत खुश किस्मत कहा जा रहा था कि इसकी किस्मत इस कदर जल्दी खुल गई। अच्छा घराना मिल गया था। क्या पता था कि इसकी बदकिस्मती खुशकिस्मती के पर्दे में छुपी है। और हम सब पर एक साथ दोनों बहनों को मायूं में बिठा दिया गया, क्योंकि छोटी का रिश्ता पहले से आया हुआ था। वो बेहद खूबसूरत थी तो रिश्ता भी अमीर घर आने से आया था। दोनों दुल्हनें बनकर बहुत प्यारी लग रही थी, मगर रुखसती से 2 दिन पहले इस रात को किसी पहर में महानूर को खून की उल्टी आ गई। अम्मी घबरा गई। ऐसा मौका था कि कुछ नहीं कर सकती थी। इन्हें लगा कि इसने कोई ऐसी वैसी चीज खा ली होगी। कहा कि अगर शादी नहीं करनी थी तो मुझे बता देती। बोली, नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा वैसा कुछ नहीं खाया, मैं भला क्यों खुदकुशी करूंगी। मेरी तबीयत काफी दिनों से खराब थी, हल्का हल्का बुखार रहता था और खांसी की दवा तो आपने खुद ला कर दी थी। मौसमी बुखार खांसी है, ठीक हो जाऊंगी, बस वही दवा खानी थी। बहरहाल वालदा ने एक हकीम साहब को बुलाकर महानूर को दिखाया। डॉक्टर के पास नहीं लेकर गई कि शादी वाला घर है, कहीं अफरा तफरी ना मच जाए। हकीम साहब ने कहा कि बच्ची को काफी अरसे से टीबी है। बेचारे मामू सर पकड़ कर बैठ गए। इनसे अम्मी ने कभी बुखार या खांसी तक की बात नहीं की थी। जिस खौफ ने मामू को सरतान की तरह जकड़ा हुआ था वो एकदम इन पर हावी हो गया। इन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करनी। अम्मी ने इन्हें समझाया कि इस वक्त शादी मुलतवी करना मुनासिब नहीं है, वरना तुम्हारी लड़की की शादी पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। शादी हो जाने तो बारातें आने वाली हैं, अब अपने लफ्ज वापस ले लो, हम इलाज करवा लेंगे, ये तंदुरुस्त हो जाएगी। यूं महानूर और दुआ ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। मेरी अम्मा इसके साथ गई थी। वहां इनका इस्तकबाल मोहब्बत से किया गया, मगर अम्मी ने महसूस किया कि दुल्हा कुछ खामोश और संजीदा है। वो समझी कि फितरी शर्मो हया होगी। खैर दुआ को कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया। सब लोग चले गए तो दुल्हे ने कमरे में आते ही दुल्हन से कहा कि तुम मेरे वालिदैन की पसंद पर लाई गई हो, जबकि मैं एक अदाकारा को पसंद करता हूँ और मैं दूसरी शादी इसी से ही करूंगा। तुम्हें रहना है तो मेरे माँ बाप के साथ रहो, वरना तलाक लेना चाहो तो दे दूंगा। ये अल्फाज सुनकर इस पर कयामत
टूट पड़ी। इसने रोना शुरू कर दिया, रोते रोते निढाल हो गई। इस बेचारी को आते ही ऐसा क्यों कह दिया, कुछ तो सांस लेने दिया होता। तभी इसने कुछ सोचकर इसका घूंघट उठाया तो इसकी सूरत देखता ही रह गया। कहने लगा, तुम इस कदर क्यों रो रही हो? बोली, अपनी बेकदरी पर नहीं, अपने बाप की बेबसी पर रो रही हूँ। अली ने इसकी आंखों से आंसू पहुंचे और यही वो लम्हा था जब इसे सही मानों में इंसानियत का मफहूम समझ में आया और हुस्न की पहचान हुई। वो इस लड़की को गुजरते दिनों के साथ भुलाता गया, मगर इस अदाकारा ने अली के वादे को नहीं भुलाया। वो रो रो कर निढाल हो रही थी। जब इसके घर वालों ने अपनी बेटी का ये हाल देखा तो सोच में पड़ गए। गुस्से और नफरत की वजह से इनका बस नहीं चलता था कि इस शख्स का गला दबा दे जिसने वादा खिलाफी करके इनकी बेटी को इतना दुख पहुंचाया था। वो लोग मामू के मोहल्लेदार ही थे। इनसे दुआ की हंसती मुस्कुराती जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो लड़की हुस्ना महबूब की बेवफाई से अधमुंही हो चुकी थी। हसद और जलन के जज्बात बढ़ते जा रहे थे। वो अपने घर की छत से रोज शाम को दुल्हा और दुल्हन को गाड़ी में बैठकर सैर को जाते देखती तो धाड़े मार मार कर रोने लगती। इसके वालिदैन के दिल में इतना गुस्सा भर गया कि इन्होंने अली से बदला लेने की ठान ली। और एक दिन लड़की का बाप इसके पास आया, कहा कि बेटा, शादी तो नसीब की बात होती है, हमें कोई रंज नहीं कि तुमने हमारी बेटी से शादी नहीं की, बल्कि खुशी है कि अपने वालिदैन की फरमाबरदारी की। माँ बाप को राजी करने से ही औलाद को खुशियाँ मिलती हैं। हम बिल्कुल भी खफा नहीं हैं, मगर आपसे दरख्वास्त है कि हमारी तरफ से शादी की दावत कबूल कर लें तो खुशी होगी कि हमें किसी काबिल समझा। दुल्हन के हमरा कल शाम का खाना हमारे यहाँ खा लें। अगर दावत कबूल ना की तो हमारा दिल टूट जाएगा। अली पहले ही इन लोगों से शर्मिंदा था। इनसे कहा कि जी अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं और मेरी दुल्हन कल शाम 7 बजे हाजिर हो जाएंगे। गर्ज इस चालाक शख्स ने शक भी नहीं होने दिया कि ये किसी इरादे से दावत देना चाहता है। अली तो पहले भी कई बार इन लोगों के घर में जा चुका था, रोज ही जाता था और इनसे भला क्या खतरे की बात थी। अगले रोज मुकर्ररा वक्त पर वो हुस्ना के घर दावत पर दुआ के साथ चला गया। अलबत्ता वालिदैन को ना बताया कि कहाँ जा रहे हैं। इस दावत से 2 दिन पहले दुआ शोहर के साथ मामू के घर आई थी। इनका दिल खुशी से भर गया। इनका बस नहीं चलता था कि जन्नत की नेमतें भी दामाद और बेटी के आगे रख देते। खैर, बाद में एक दिन रहकर वापस चली गई। शादी के बाद इन 15-20 दिनों में इस कदर हसीन हो गई थी कि इस पर नजर नहीं टिक रही थी। इधर मानूर की शादी के बाद तबीयत मजीद बिगड़ गई थी। ससुराल वाले बीमारी के बारे में जान गए, वो इसे हमारे घर छोड़ गए। मामू का दिल अपनी बेटी की तरफ से ठंडा हुआ तो दूसरी तरफ से खुश हो गया था। अम्मी ने इलाज करवाना शुरू कर दिया और इलाज में कोई कसर न छोड़ने का तहिया किया। इधर दुआ को अपने महबूबा के घर दावत पर ले गया। मासूम दुआ को क्या खबर थी कि क्या होने वाला है। सबने एक मेज पर खाना खाया, मगर जाने किस महारत से इन्होंने दुआ के सामने रखी प्लेट में कोई चीज डाल दी, जिस पर चावल डालकर इसने खा लिया, मगर इसे कुछ महसूस न हुआ। हुस्ना की छोटी बहन ने बड़ी डिश में से चावल इसकी प्लेट में डाले थे, जैसे मेहमानों की खातिर तवाज़ा की जाती है और इसरार करके खाना खिलाया जाता है। दोनों मियाँ बीवी ने इनकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा किया और दावत खाकर ये लोग घर लौट आए। जिस दिन से ये खाना खाया था दुआ की तबीयत खराब रहने लगी। हफ्ता गुजरा तो इसकी हालत अबतर हो गई। इसने अम्मी को फ़ोन किया, वो वहाँ गई तो इस पर एक नज़र डालते ही चकरा गई। जिस्म पर धब्बे नमूदार हो गए थे और रंगत पीली हो रही थी, होंठों का रंग भी नीला हुआ था। अम्मी ने लाख पूछा तो कहने लगी कि कुछ नहीं है, बस जिस्म में जान नहीं रही। वो इसे अपने साथ घर ले आई और एक हकीम को बुलाकर चेक करवाया। हकीम ने देखते ही कहा कि किसी ने खाने में कुछ मिला दिया है और मेरे पास इसका इलाज नहीं है, आप डॉक्टर को दिखाइए। मगर मेरे नज़दीक ये 2-4 दिन के मेहमान हैं। अम्मी घबरा गई और मामू सदमे से बेहोश हो गए। अब वो भी परेशान थे। इन्होंने अली को फ़ोन करके सूरत हाल बताई। वो भागा आया, मगर दावत का ना बताया कि किसके घर खाना खाया था, क्योंकि इसने भी साथ ही खाना खाया था और इसे कुछ नहीं हुआ था। एक दिन की तकलीफ के बाद दुआ हम सबको छोड़कर चली गई। सभी गमज़दा थे और आंखें लबरेज थी, खास तौर पर हमारी माँ। आज वो सोच रही थी कि काश मैं दुआ का रिश्ता ले लेती तो आज ये मौत के मुंह में नहीं जाती। फुप्पी थी मगर माँ बनकर पाला था। जैसे 2 बहनें 7 दुल्हनें बनी थी, वैसे ही वो अल्लाह के पास भी चली गई। पहले मानूर को खून की दोबारा क्या हुई थी और इसने इस जहां को खुदा हाफिज कह दिया। अगले दिन अभी इसका जनाजा उठने नहीं पाया था कि छोटी बहन भी हमें छोड़कर चली गई। मानूर को अम्मी ने अपनी बहू बनाया, क्योंकि इनको गैरों से बड़ा सबक मिला था। सभी इसको देखकर रफ्ता रफ्ता भूल गए। मानूर को अम्मी ने अपनी बहू ना बनाया और इनको गैरों से बड़ा सबक मिला था। सभी इसको देखकर रफ्ता रफ्ता भूल गए, मगर मामू ना भुला सके। वो खुद से बेगाना रहने लगे। इन्हें देखकर मैं सोचा करती थी कि अल्लाह जाने कौन लोग इतने सफाक होते हैं कि मामू बेचारे को ऐसी सजा मिली। वो अपना ज्यादातर वक्त बेटियों की कब्र पर गुजारते, आखिरकार वो भी इन्हीं के पास पहुंच गए। अल्लाह इनकी रूह को सुकून अता करे, आमीन।